Uh, Shadipan, can we start with the permission from the MOT? Please, please go ahead. Good afternoon, everyone. Welcome to online training program on new normal hospitality, and especially today's session is on the topic is homestay operators. So on behalf of ETHOA, we just welcome Dr. Angshuman Chatterjee. Dr. Angshuman Chatterjee has been the doyen of this hospitality education in this country, an academician since 1988. He taught in IIHL Kolkata, Government of India, 21 years. He is a corporate head and the human resource for the global multinational companies based in 10 countries. He has served large hospitality as the chief head of Dr. Angshuman Chatterjee in our country is a small group of trainers with personal and training and his cross country. These are Indian society. I think there's some problem with your audio. I mean, the network, I think the network is not proper. Your voice is not coming through. Can you hear me? Hello? I think Sandipanda, there is some issue with Devashish's internet connection today. So perhaps he can moderate in between. So for now, can you just carry on behalf of him? We'll do that. I'll do that. So good evening. I think unfortunately Devashish is having some problems with his internet connection. So as he was mentioning, we are very lucky and we're very honored to have Dr. Angshuman Chatterjee among us. Dr. Chatterjee, of course, has already moderated, he's conducted 2 sessions for ETHOA on hoteliers and tour operators. We have a very, very interesting session today coming up for homestay operators, and we look forward to a very positive and very fruitful discussion and session today, interaction. And we also have with Mr. Shayak Nandi from the India Tourism Kolkata office. Mr. Nandi, of course, is the Tourist Information Officer, and he's going to share his thoughts with us in a while, and we'll take the session forward from there. So can I just invite Mr. Shayak Nandi to have his opening remarks, please? Thank you, Shandipanda. Thank you, ETHOA members and all homestay owners, friends. Thank you for joining us once again in this training for new normal hospitality protocols of the Government of India, Ministry of Tourism. Friends, we are organizing this kind of sessions, this kind of workshops, training workshops everywhere in Eastern India and other parts of the country. We have faced a certain situation, an unusual time, for which we didn't have any answer as such, as a tourism fraternity or the industry. So while looking for the future, the road ahead, the way ahead procedure for our stakeholders to operate among the COVID like normal, the COVID new normal. So today we have a national award winner, Dr. Angshuman Chatterjee, a veteran hospitality professional. He's a like trainer too. He was corporate HR and training head for Taj Group of Hotels as well as Neotia School of Hospitality. And further, he is the director IAS at present, and I think Dean of Neotia School of Hospitality.
So before sir take us to this journey, take us to this protocol and discuss the future way ahead with you, I would just like to mention a few things just to add before the discussion begins. That friends, we the Ministry of Tourism, Government of India, we recommend often that when you accept tourists post COVID or this at present scenario, that you get them tested, you ask them to get tested for COVID, and if and only if they come up with a COVID negative report, you accept the booking. It's not any the entire protocol and particularly this recommendation is just a voluntary thing. We are nobody to put a kind of there is no legal action involved with this protocol as such. Why we are recommending this is very specific, and particularly in places from where you people belong, the Darjeeling Himalayas, the Eastern Himalayas, is that in case, suppose we all are getting news about Darjeeling is being opened up from 7th of September. I hope that that news is confirmed and is being confirmed by the West Bengal government, and further we can start the tourist season. We can the tourism can take rebirth once again. But before that, I would like to mention this thing that when tourism will start, if by any chance we don't think, we don't wish that to happen, but by any chance COVID is spreaded in this kind of interior places, then there will be a huge setback. And that's why, just because of that reason, we are recommending this COVID testing thing, which will be elaborated during the today's training session by Dr. Anshuman Chatterjee. And it's just to see the protected environment for the stakeholders like you, and a safe and secure business environment for the future. That's why we are recommending this thing. Further, Dr. Anshuman Chatterjee will take us through the entire training session and entire like nitty-gritties about the course. Thank you. Thank you so much. Sir, please take over. Yeah, thank you. Thank you for speaking in such a high tone about me. It's the only difference is that probably I have spent many years in this world, so like I have known more people and been to more places. So good evening, everybody here. I've been told that homestay owners from different parts of the hills would be here today. This year itself, in January for a week and then in February for 2 weeks, I was in Darjeeling conducting a training for homestay owners organized by MSME, Darjeeling. So I came in contact with about 25 homestay owners. We are still in touch. We have a WhatsApp group where we discuss every day. We talk also among ourselves. So generally, I have been close to the homestay owners since the beginning of this year. I only wish I learned the Nepali language, because if I knew this language, I could have spoken in that language of the land. But I promise, because now I come to Siliguri every month, I shall make it a point to learn this language so that next time we speak, at least some part of it I can speak in your language. I can see many Nepali speaking people in this webinar already. So मैं थोड़ा मतलब हिंदी में भी बात करूंगा, और जहाँ पे क्योंकि मेरी हिंदी टूटी फूटी है, तो जहाँ नहीं मैनेज कर पाऊंगा तो मैं थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोल दूंगा, तो ये दोनों को एक साथ रखते हैं। अब देखिए, सब कुछ ये जो नियम बनाया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है, सब प्रोटेक्शन के लिए इतना सारा कुछ करना है, ये तो अपनी जगह है ही है, ये तो हम डिस्कस करेंगे आज। बट
अभी हम कहाँ खड़े हैं, क्या हुआ है हमारे साथ, ये जो हादसा हुआ है क्या हुआ है और इसका असर क्या है हमारे ऊपर। नेगेटिव तो है, बहुत कुछ नेगेटिव है। पिछले साल हमारा जितना टूरिज्म का बिजनेस था इंडिया में, उसमें अबाउट 43 मिलियन वर्कर्स थे टूरिज्म इंडस्ट्री में, 43 मिलियन। और उसमें से मतलब पूरे इंडिया के वर्कफोर्स का 8% के ऊपर सिर्फ टूरिज्म में थे। और ये सिर्फ टूरिज्म में है, साथ में जो इंडस्ट्रीज है जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उनको तो काउंट किया ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो आदमी वो टिश्यू पेपर, टिश्यू नैपकिन्स बनाता है और होटल्स को सप्लाई देते हैं, होम स्टे में आता है वो नैपकिन्स, वो बनाने वाला आदमी भी फैक्ट्री बंद करके बैठा हुआ है। और उसके पास जो एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे, वो भी सारे अभी कुछ, उनके पास भी कुछ ना कोई काम है ना कोई पैसा है। तो ये सब ऐसे बहुत हैं होटल्स में, जो सिटीज में है होटल्स, उसमें सारे 50% स्टाफ को तो बिठा दिया गया है, बाकी जो स्टाफ है किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 50% तनख्वाह मिल रहा है। तो चारों तरफ सिर्फ सिर्फ दुख ही दुख है पूरे हमारे इंडस्ट्री में। अब तक जो शुरू से जो ये मार्च के महीने में जो शुरू हुआ था, बहुत लोगों की नौकरी चली गई। तो यही क्या हमारे लिए दुख ही दुख है, या जो समय है जो हम जैसे पहले हम बिजनेस करते थे वो समय भी वापस आने वाला है। तो ये जो मैंने कहा कि इतने सारे लोगों की नौकरी गई, बिजनेस बंद हो रखा है, इसके बावजूद हमारे सामने कुछ आशा की बानी भी है। कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है जिससे हमको मालूम चलता है कि नहीं, ये तो बिजनेस तो ऐसे रुकने वाला नहीं है, बिजनेस आगे चलेगी। वो क्या है? अब देखिए 2019 में 10.5 मिलियन लोग फॉरेन कंट्रीज से हमारे देश में आए थे घूमने के लिए, 10.5 मिलियन। अब का जो हालत है, ना फ्लाइट चल रही है, ना बाहर से लोगों का आने का अलाउड है, तो ये 10.5 मिलियन लोग तो इस साल नहीं आने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारा घाटा है हमारे लिए। लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, सबको इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज को हम नहीं देख रहे हैं कि 26 मिलियन लोग इंडियंस वो विदेश गए थे घूमने के लिए। मैं काम के लिए नहीं बोला, घूमने के लिए 26 मिलियन लोग विदेश गए थे। अब ये 26 मिलियन लोग जो भारत के अंदर है, ये भी जैसे बाहर से कोई नहीं आ सकता, ये भी बाहर नहीं जा सकते हैं। ये बैंकॉक जाते थे, सेशेल आइलैंड जाते थे, यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, आपका मालदीव जाते थे, मिडिल ईस्ट जाते थे, दुबई वगैरह में कहीं नहीं जा पाएंगे ये लोग। लेकिन घूमना तो इनको है ही, सबको घूमना है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये देश के अंदर ही घूमेंगे। और ये घूमना चालू हो गया है, मतलब हमने खो दिया 10.5 मिलियन इस साल, और हमको मिला है नया 26 मिलियन। तो फायदा तो रहा है, रहेगा। अभी आने वाले दिनों में हम इसका असर देखेंगे। तो इतना रोने का भी कोई कारण नहीं है। हाँ, ये सच है कि 4-5 महीना हो गया हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन हम अलग नहीं है, ये सिर्फ हम नहीं है, पूरी दुनिया में सबका ये हालत है। सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं, बाकी इंडस्ट्रियों में भी इसका हमें लगता है जैसे कि ये जो 5-6 महीना हमारी जिंदगी में से हवा हो गया है ही नहीं, ये कभी था ही नहीं। सबका प्रॉब्लम है। जो लोग अच्छे खाते थे अब दाल चावल खा रहे हैं, किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। और ये हमारे पास तो फिर भी कुछ है, हम खाते हैं। बहुत लोग ऐसा है जिनके पास खाने का भी नहीं है। हम जिसके पास कुछ है वो सब मिला के इन लोगों को दिया जा रहा है। ये काम भी बहुत अच्छी तरह से हमारे देश में हो रहा है। जिनके पास है वो दे रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए। ये समय जो है 5 महीने में दिखा दिया कि हम सब अभी भी कितना हमारे में
ह्यूमैनिटी भी बचा है, ये भी साबित हो गया हमारे देश में। सो इतना अभी टूटने का कोई चांस, कोई कारण ही नहीं है, टूटने वाली बात भी नहीं है। अभी हमें जो करना है, हमको अभी शुरू क्या होने वाला है उसके तरफ देखना है। अब देखिए, लॉकडाउन अब रहा नहीं है, अभी अब देखिएगा तो अनलॉकडाउन हो रहा है। मतलब एक एक करके धीरे 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 अनलॉक किया जा रहा है। पहले कुछ इंडस्ट्रीज खोला, उसके बाद आपका होटल्स खोला, रेस्टोरेंट्स खोला, अभी बार खुलने वाले हैं और मॉल्स खुल गया। धीरे 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 सब कुछ ही खुल रहा है और अभी टूरिज्म भी अलाउड हो गया। तो टूरिज्म अलाउड हो गया, लेकिन टूरिस्ट आएंगे क्या? तो प्रश्न ये आता है मन में। अब देखिए, हर परिवार में जो लोग घूमते थे, जो लोग घूमते हैं, हर परिवार में कोई बाहर तो आए नहीं 5 महीने में। जो एक आदमी बाहर आता है, थोड़ा बाजार गया, दुकान में गया, वापस आ गया। लेकिन बाकी जो लोग हैं घर में, वो लोग तो बाहर कदम नहीं रखा है। तो सबका ना एक घुटन सा होने लगा है, क्योंकि जो लोग घूमते हैं उनके लिए 5 महीने से घर से बाहर नहीं आना, ये तो एक फिजिकल हो गया, उसके साथ साथ मेंटल भी बहुत ज्यादा ये प्रेशर बन चुका है। तो ये मेंटल प्रेशर को ये लोग बाहर आना चाह रहे हैं मेंटल प्रेशर से। जैसे कोई प्रेशर कुकर के अंदर बैठा होता है ना, उसके अंदर जब हम खाना पकाते हैं, जैसे वो सीटी मारता है, उस टाइप का सिचुएशन बन गया है ये। तो अभी लोग घूमना शुरू कर दिए हैं, मैं ये जान के बता रहा हूं, घूमना शुरू कर दिए हैं। तो लोग बाहर आने लगे हैं, लेकिन लोग कहाँ आएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये सब हमें अभी विचार करना है। उसी के ऊपर हमारा बिजनेस अभी तैयार होना है। अब देखिए, आज का जो सेशन है, इसका नाम दिया गया है न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ही क्या है और न्यू क्या है? तो एक तो है नॉर्मल, मतलब जब हमारा नॉर्मल बिजनेस होता था, जैसे 2019 में हुआ था या 2020 का जनवरी फरवरी में भी हुआ था, तो वो था नॉर्मल। अब अभी तो नॉर्मल है नहीं कुछ, अभी तो सारा सब कुछ अबनॉर्मल है। हम तो पूरी जिंदगी में ऐसा कोई अबनॉर्मल सिचुएशन देखा ही नहीं है। तो मैं भी नहीं देखा, तो मेरे से जो छोटे हैं वो तो एक बिल्कुल ही नहीं देखे हैं। तो हम सुनने हैं कि 100 साल पहले एक प्लेग हुआ था, तब ऐसा हुआ था। तो उसके बाद भी डेंगू आया था तो कुछ हुआ था, उसके पहले एक बार मीजल्स आया था तो ऐसा हुआ था, अफ्रीका में इबोला हुआ तो ऐसा हुआ था। लेकिन हमारे जिंदगी में तो ये ऐसा चीज कभी नहीं हुआ। इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल जो हमारा बिजनेस चल रहा है और अभी जो अब नॉर्मल हो गया है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसका कारण ये है कि इसके पहले जब, जैसे 100 साल पहले मैंने बोला कि प्लेग हुआ था और पूरे दुनिया में हर देश में प्लेग के कारण लाखों मरे थे तब के समय में। और तब तो इतना वैक्सीन वगैरह, मेडिकल साइंस इतना डेवलप भी था नहीं आज का मेडिकल साइंस के हिसाब से। और इस बार देखिए, हर देश में हर साइंटिस्ट एक ही काम में लगे हुए हैं कि इस कोरोना का एक वैक्सीन निकाले, इसी काम में लगे हुए हैं सारे। तो कभी ये भी तो दुनिया में नहीं हुआ कि 1000 साइंटिस्ट एक साथ एक ही चीज निकालने में लगे हुए हैं। और हमारे पास खबर भी आ रहा है, जो इंग्लैंड में बन रहा है, जो रशिया में बन रहा है, वो करीब करीब बन चुका है, आगे मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये वैक्सीन भी आने वाला है। साथ साथ हमारा इसका जो डेथ रेट है वो भी नीचे जा रहा है हमारे देश में। बाकी कई देशों से हमारे डेथ रेट काफी नीचे है और ये नीचे जाने वाला भी है। अब देखिए, टूरिज्म चालू जैसे हो गया, लेकिन अभी भी ये अबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर ही हम जी रहे हैं। न्यू नॉर्मल अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ रहा है। तो न्यू नॉर्मल क्या रहेगा? जब हम फिर दोबारा 2019 का हिसाब से बिजनेस करेंगे या उससे ज्यादा बिजनेस करेंगे। एकदम रातों रात तो ये होने वाला है नहीं, ये धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे कैसे होगा?
पहले का सोच लेते हैं कि अब भी आने वाले 1-2 महीने में किस तरह का बिजनेस होने वाला है। अभी जैसे मैं बाहर जाऊंगा अपने फैमिली को लेकर, तो कहाँ जाऊंगा मैं? राजस्थान जाऊं, पंजाब जाऊं, हिमाचल प्रदेश जाऊं, केरला जाऊं, गोवा जाऊं? नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि इसमें रिस्क है, काफी लंबा सफर करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के बीच में पता नहीं किसके पास ऑलरेडी कोरोना है। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं घर से गाड़ी लेकर जहां तक जा सकता हूं वहां तक ही जाऊंगा। गाड़ी के अंदर मैं और मेरी फैमिली रहेगी, और हो सकता है हायर्ड कार ले लिया तो साथ में ड्राइवर है, तो उसका भी हेल्थ रिपोर्ट रहेगा हमारे पास। तो मतलब लोग पहले आएंगे छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, बहुत दूर सफर करने वाले नहीं है लोग। मैं सफर कर रहा हूं पिछले महीने से, हर महीना सिलीगुड़ी आता हूं, लेकिन वो है काम के लिए। काम के लिए तो लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए जो है अभी वो शुरू हुआ है। वो कहाँ होगा ना, नजदीक का कोई जहां पे हम गाड़ी लेकर जा सकते हैं और ज्यादा लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा, इस टाइप का जगह में जाएंगे हम। मैं सिलीगुड़ी में हूं तो अपनी फैमिली लेकर शायद मैं ताकदा चला जाऊंगा, या लामाहट्टा चला जाऊंगा, या शीटोंग चला जाऊंगा, चिमनी चला जाऊंगा। इस वक्त शायद मैं दार्जिलिंग शहर के अंदर पसंद नहीं करूंगा जाना, क्योंकि वहां पे भीड़ ज्यादा है। तो अभी सब हम भीड़ को अवॉइड कर रहे हैं, तो ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं करूंगा। ना ही हम कलकत्ता जाना पसंद करेंगे घूमने के लिए, क्योंकि वहां पे भी भीड़ ज्यादा है। और अगर कोई कलकत्ता में है तो वो शायद दीघा जाएगा, मंदारमनी जाएगा, ये सब जगह में जाएगा। तो ये हमको फिर ये जो हम जो बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, मैं अपना होम स्टे लेकर बैठा हुआ हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे लिए मेरे पास कौन आ सकता है इस वक्त। इस वक्त वही आएंगे जो गाड़ी में आएंगे। कलकत्ता से, गुजरात से लोग तो अभी आएंगे नहीं। अभी आएंगे तो ये पूरा प्लेन से आएंगे, जो सिलीगुड़ी में है, जलपाईगुड़ी में है, कुछ बिहार में है, ये सब जगह में जो लोग हैं। तो मैं जो करूंगा अभी, मैं ये सब जगहों में जो टूर ऑपरेटर्स है, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन लोगों से बात करूंगा और उन लोगों को बोलूंगा कि भाई मेरा ये होम स्टे है, इसमें देखो सरकार से जो जो नियम सब बोला है, मैं हर चीज का पालन कर रहा हूं, और उसका मैं आपको फोटोग्राफ भेजता हूं, मैं आपको वीडियो भेजता हूं, किस ढंग से मैं अपना जो होम स्टे है उसको किस ढंग से मैं सजाया हूं। और एक आदमी अगर अपना घर से बाहर आके इधर आके रहेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, घर में जितना हमारा सेफ्टी है उतना ही सेफ्टी मेरे होम स्टे में होगा उनके लिए। मैं ये सब कुछ नियम यहाँ पे रखा हूं मैं। मैं अभी टारगेट करूंगा, अगर मेरे पास होम स्टे है, कि कौन हमारे यहाँ आ सकता है और मैं कैसे उनको साहस दिला सकता हूँ, उनको मैं आश्वास दिला सकता हूं कि भाई आप आइएगा तो मेरे यहाँ पे 100% सेफ है, आपका घर से ज्यादा यहाँ पे आपके लिए सेफ्टी मिलेगी। तो ये जो साहस उनको दिलाना हमें है। हम खुद डर के मारे बैठे रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे साहस दिलाएंगे। तो ये सब कुछ हम देखेंगे जो हमें करना है हमारे होम स्टे के अंदर, वो हम करेंगे ये न्यू नॉर्मल के लिए। तो अभी 1-2 महीने में हम इसी तरह का हमको गेस्ट मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, और आगे अनलॉकडाउन होगा, फ्लाइट्स चालू हो जाएगा, ट्रेन चालू हो जाएगा, लोग भी दूसरे सिटीज से भी आने लगेंगे, फिर भी कम। वो रहेगा सेकंड नॉर्मल में, सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज हो गया जो नजदीक की जगह से आएंगे, सेकंड फेज शायद कलकत्ता से आना चालू करेंगे, वो तभी भी हमको गुजरात से नहीं मिलेगा, कलकत्ता से मिलना शुरू हो जाएगा। और जो थर्ड फेज आएगा, जो फाइनल फेज आएगा, वो सारा 2019 के हिसाब से ही होगा। फिर भी इसको हम न्यू नॉर्मल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज देखिए किसी कारण हमने इतना हेल्थ सेफ्टी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। जैसे ये वायरस चला जाएगा, क्या हम ये सब बंद कर देंगे? हम जरूर बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कोई खराब प्रैक्टिस तो नहीं है, ये हमारे जान के लिए ही है। तो ये सब चीज हम जारी रखेंगे। अगर सब कुछ ये वायरस पूरा खत्म होके पूरा ये डिस्ट्रॉयड हो भी जाता है, फिर भी हम न्यू नॉर्मल बोलेंगे, इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे,
क्योंकि नॉर्मल में ये सब था नहीं, हाथ अच्छी तरह से धो लो बाहर से आने से, ये सब था नहीं। अब ये आ गया है और ये रह भी जाएगा आगे, क्योंकि आज को कोविड-19 हुआ है, कौन कह सकता है कि कल को कोविड-20, कोविड-21 ये सब नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका आदत हम डाल लेते हैं तो वो आदत चलता रहेगा और वो हम सबके लिए अच्छा ही है। तो यही है जो न्यू नॉर्मल होने वाला है। तो हम देखते हैं कि न्यू नॉर्मल में, चलिए हम देख लेते हैं कि हम होम स्टे ओनर्स को क्या क्या अधिक करना पड़ेगा। हमें, हमारे पास अभी जो है, मैं जैसे बोला पहले, मैं 3 हफ्ता होम स्टे ओनर्स के साथ बिताया हूँ दार्जिलिंग में। मैं दार्जिलिंग में होम स्टे में ही रह रहा था वो 3 हफ्ता, जनवरी में 1 हफ्ता और फरवरी में 2 हफ्ता। तो होम स्टे ओनर्स के साथ उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या करना है, बहुत सारे बातें हर रोज होता था। उनका कॉस्टिंग क्या है, कैसे उसको प्रॉफिट में लाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे कंपटीशन होता है, ये सब कुछ का चर्चा हुआ था। कैसे डेकोरेट करना है, क्या क्या फैसिलिटी दिया जा सकता है, ये सब कुछ। तो वो तो अपनी जगह है। अभी जो न्यू नॉर्मल शुरू हो रहा है, इसमें हमको इसके अधिक क्या करना पड़ेगा, इससे आगे क्या करना पड़ेगा, उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, आपके पास टूरिस्ट आए, एक गाड़ी में एक फैमिली का 3 जन आ गए या 4 जन आ गए, साथ में एक दूसरी गाड़ी, उसमें भी 3-4 जन आ गए, जो फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, उनके फैमिली को लेकर ये लोग आ गए। तो इसमें अभी सरकार का जो आदेश है, जो नियम है, उसके हिसाब से 15 जन से ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। एक फैमिली में तो 15 जन तो नॉर्मली होता नहीं है। 2 फ्रेंड के फैमिली भी आ जाएंगे, 3 फ्रेंड के फैमिली, लेकिन 15 जन के ऊपर एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। होम स्टे में भी इतना रूम्स तो होता नहीं है कि 20 जन रह जाएगा। होम स्टे में जनरली 3-4 रूम्स होता है, एक रूम में 2 से 3 होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं है। ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियम है, हम होम स्टे में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोग आ गए हमारे यहाँ पे, अपनी गाड़ी लेकर हो, बाहर की गाड़ी लेकर हो, एकदम जो मेन गेट है वहां पे एक चेक पॉइंट करना पड़ेगा हमको। एक पूरा चेकिंग रहेगा। उसमें क्या रहेगा, आजकल आप देख चुके हैं ऑलरेडी, फिल्म में भी देखे हैं, ये व्हाट्सएप में आता रहता है, वो जो टेम्परेचर चेकिंग होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेकिंग मारता है, जो एक गन होता है, टेम्परेचर बता दिया जाता है कि अगर बुखार है तो भाई हम अंदर उनको नहीं ला सकते हैं। ये एकदम याद रखिएगा। हर एक चीज अभी हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारे पास जो गेस्ट आएंगे उनका प्रोटेक्शन के लिए है। हमारा जो अपना जान है भाई, वो कोई गेस्ट का जान से कम नहीं है। मेरी भी फैमिली है, मैं होम स्टे चला रहा हूं तो क्या हुआ, मेरी भी फैमिली है, मेरे रोजगार के ऊपर लोग खाते हैं, तो उनका जान जितना कीमती है, मेरी जान भी उतना ही कीमती है, उतनी ही कीमती है। ये कभी नहीं सोचना कि ये एक फालतू सरदर्द आ गया है, ये करना है उन लोगों के लिए। ऐसा आता है, ऐसा सोच आता है, ये क्या बेकार है, इतना कुछ करना है। भाई इतना कुछ सिर्फ उनके लिए नहीं करेंगे हम, ये अपना सेफ्टी के लिए भी हम करेंगे, क्योंकि वो तो एक बार आएंगे चले जाएंगे, हमारे यहाँ तो रोज लोग आता रहेगा, तो अपना जान खतरे में हम क्यों डालेंगे। ये सारा जितना अभी हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ करना है। जैसे ये टेम्परेचर चेकिंग बोला मैंने, हो सकता है तो अब जहां वो आते हैं वहां पे हैंड वॉशिंग का एक इंतजाम करिए, एक सिंक, साथ में साबुन कोई हाथ में दे दे, साबुन का वो डिब्बा पकड़ के नहीं, लिक्विड सोप कोई हाथ में सिक्योरिटी हो, आप खुद हो, उनको हाथ में दीजिए और वो हाथ धो ले पूरा कोनी तक 20 सेकंड के लिए। ये इससे बढ़िया कोई सैनिटाइजर भी नहीं है। अगर ये वॉशिंग का वहां पे इंतजाम नहीं कराया जा सकता तो ठीक है, उनको कम से कम हैंड सैनिटाइजर दीजिए और पहले चेक कर लीजिए भाई मास्क तो पहना हुआ है ना। बिना मास्क पहने प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकते हैं, आप रोक लीजिए, आपका हक है ये बोलने का।
क्योंकि आपके वहां पे जो रहेंगे, आपके अगर कोई कर्मचारी हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं अपने होम स्टे में, उनको भी पूरा प्रोटेक्शन लेना है। उसमें मैं आ रहा हूं बाद में। अब और एक चीज करना है, पहले हम यहाँ वहाँ फोटोग्राफ्स लगाते थे। हाँ, कोई कौन कौन जगह में जाना है उसका सीनरी का पोस्टर लगाते थे। उसके साथ साथ अभी कोविड वाला पोस्टर भी लगाना है, उसमें सारा सब कुछ लिखिए। इसको अब प्रिंट कराने का जरूरत भी नहीं है, आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। दिखा लीजिएगा किसी को, हैंड रिटन भी कर सकते हैं। उसमें लिखिए कि भाई हमारे यहाँ हम ये करे हैं आपके सेफ्टी के लिए, और आप भी कृपया ये मान के चलिए। इस टाइप का पोस्टर हो, स्टैंडी में हो, चारों तरफ लगा दीजिए। ये जैसे वो आए उनका नजर में आना पड़ेगा। इसको लाल से लिखिए, नील से लिखिए, पीला से लिखिए, एकदम मतलब इतना चमके ये, ताकि सबका नजर उस तरफ जाए। और पूरा इन लोगों को आप साहस दिलाइए कि सर हर एक जगह डिसइंफेक्ट किया गया है, सैनिटाइज किया गया है, ये पूरा रखिए। और स्टाफ, आप खुद और स्टाफ सबके लिए मास्क जरूरी है। देखिए, हम सब मास्क की बात करते हैं, ये याद रखिएगा हमारा जो मुंह है, जो नाक है, ये दोनों जगह बहुत वल्नरेबल है, तो इसको मास्क से हम ढक लेते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमारे आंखों से भी ये वायरस अंदर आ सकता है। तो जिनके पास चश्मे हैं, जैसे मेरा है, तो ये तो एक सामने एक प्रोटेक्शन बन गया है। लेकिन जिनके पास नहीं है, आप फेस शील्ड पहन लीजिए। फेस शील्ड आजकल बाजार में मिलता है, 10-20 रुपया में मिल जाता है। यहाँ पे एक बैंड होता है और सामने से एक शील्ड होता है, तो वो पूरा मास्क के ऊपर भी आपका आंखें जो है, आपका गाल, सब कुछ पूरा यहाँ तक का कवर कर देता है। तो वो पहन के रखिए। वो पहनने से जो आपके पास गेस्ट आएंगे, वो भी, उनका भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ये लोग तो काफी अच्छा, ये इतना, मैं गांव में आ गया हूँ लद्दाख में, सॉरी ताकदा में, और यहाँ भी लोग ये फेस शील्ड पहन रहे हैं, वेरी गुड। तो ये जो वेरी गुड, ये चीज उनके मन में आएगा ना, वो जाके और 10 लोगों को बोलेगा कि भाई मैं तो कोविड के समय घूम के आया हूँ, क्या बढ़िया जगह है, सब कुछ बंदोबस्त करके रखा है कि वहां पे हाइजीन, हेल्थ, सेफ्टी का कोई कमी नहीं है। तो ये पूरा अपने आपको करना है। ग्लव्स पहनना है, जब हम सफाई कर रहे हैं ग्लव्स पहनना है। और एक चीज जरूरी है, कोई भी टूरिस्ट आए और आपके स्टाफ के लिए भी आरोग्य सेतु जो ये ऐप है, ये ऐप को डाउनलोड करके रखना है। ये सरकार से बोला हुआ है, आरोग्य सेतु ऐप ये डाउनलोड करके रखिए। ये करना जरूरी है, क्योंकि उससे ना ट्रेसिंग का आसान होता है। आप कहाँ आए थे, अगर कोई कोविड पॉजिटिव आदमी है, उनके पास आए थे या नहीं आए थे, ये बाद में सरकार को इसके बारे में पता चल जाता है। और एक चीज, आप खुद भी ख्याल रखिएगा और अपने स्टाफ को ट्रेन करिएगा। अगर खांसी आ जाए, अगर छींक आ जाए, तो उसका एक एटिकेट होता है, उसका एक तरीका बताया दिया गया है, जो डॉक्टर लोगों ने बताया है। ऐसे नहीं छींकना है, ऐसे नहीं खांसना है, यूं भी नहीं करना है। ये जो जगह है, खूनी जो है, ये जगह से कवर करके करना है। ऐसे क्यों नहीं करना है? वो हाथ में आने से, अगर मेरे अंदर वायरस आ चुका है, वो हाथ में आएगा और हाथ से हर जगह में वो फिर दोबारा चला जाएगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग सबके पास होना चाहिए। हो ही सकता है मैं बात कर रहा हूं तो मेरी थोड़ी सी खांसी आ गई, तो इमीडिएटली हाथ यूं करके ढक के फिर वो करना पड़ेगा। तो ये याद रखने का। अब गेस्ट को हम क्या बोलेंगे? जैसे आ गए तो उनका जितना आइटिनरी है जो है, वो पहले से हमारे पास आके रहेगा। हमको मालूम रहेगा, ठीक है वो तागदा में आए हैं, वो थोड़ा साइकिलिंग करेंगे, मेरे पास साइकिल्स भी है, और वो थोड़ा वो फिशिंग के लिए जाएंगे, एंगलिंग के लिए जाएंगे, तो वो भी मालूम है हमको। लेकिन उसका भी टाइमिंग उनका पूरा पहले से ठीक करके रखा हुआ है। गेस्ट को हमको एक ही चीज बताना है कि सर बिना कारण का बाहर आके घूमना मना है, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए
आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा। और जब भी आपको बाहर आना पड़े, ये मास्क भूलने का नहीं है। ये चीज उनको बार बार याद दिलाना है। और बाहर सर कोई चीज नहीं फेंकिएगा। जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ गार्बेज बैग में डालिएगा, और वो बैग रूम के अंदर नहीं, रूम के बाहर रहेगा, बाहर की तरफ, जो हाउसकीपिंग स्टाफ आसानी से उसको क्लियर कर ले, जो भी क्लियर कर रहे हैं उसको। अब पूरे होटल का जितना जगह है, वो जगह में भी हमको कई सारा नया चीज करना पड़ेगा। जैसे रिसेप्शन में एक तो है आपका चेक इन जो होगा, पहले हम रजिस्टर फिलअप कराते थे कागज का, वो खत्म, अभी सिर्फ ऑनलाइन होगा। अब मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों के पास मेरे ख्याल से नेट है, इंटरनेट सर्विस है, क्योंकि पहले भी आपको ये जो मार्केटिंग वगैरह सारा इंटरनेट के सहारे ही हो रहा था, ऐसा मुझे कहा गया था। अगर हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन नहीं है तो भी आपको इंटरनेट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका पूरा चेक इन वगैरह सब कुछ नेट पर होगा। पेमेंट तक, पेमेंट भी कैशलेस, क्योंकि जैसे आप गेस्ट को बोलिएगा ना कैश में दीजिए, बस गेस्ट का वो जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला जाएगा। बोले सर वी आर नॉट एक्सचेंजिंग एनी पेपर, सो आप कृपया कैश में वो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो ये देखना है। उनका आई कार्ड भी, जैसे पहले हम क्या करते थे, आई कार्ड लेते थे और उसको जेरोक्स करते थे, ये सब करते थे, या प्रिंट आउट लिया, वो सब कुछ लिया, या फोटो ले लेते थे। अभी उनको ऑनलाइन ही भेज देना है, और वो आने के पहले से आई कार्ड, आइटिनरी, ये सब भेजना है। ट्रैवल हिस्ट्री, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, मेडिकल हिस्ट्री, क्या अभी पिछले 7 दिन में बीमार हुए थे क्या, सब कुछ हमारे पास पहले से आना चाहिए। और ये सारा जितना कम्युनिकेशन होगा, गेस्ट जब रह रहे हैं, जितना हम आमने सामने कम आए उतना ही अच्छा है। ज्यादातर कमरे के अंदर से या तो इंटरकॉम या मोबाइल पर बात करें। ये उनको बता देना है कि सर कुछ बताने के लिए आपको रूम से बाहर आने का जरूरत नहीं है, आप हमें मोबाइल पर बता दीजिएगा। मोबाइल मेरा 24 घंटा खुला होता है, और 24 घंटा खुला होता है, आपने बता दिया तो मोबाइल पकड़ना भी, फोन रिसीव करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोन बजता चला गया और रिसीव नहीं किया, आप ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब खाना खाने का क्या होगा, डाइनिंग का। अभी होम स्टे में हम क्या करते हैं, हमारा किचन होता है, तो किचन के बाहर एक जगह में रेस्टोरेंट तो नहीं बनाते हैं, एक डाइनिंग रूम टाइप का होता है, नहीं तो हमारा बढ़िया बैल्कनी होता है। बहुत सारा होम स्टेज में मैं देखा हूं जिसके ऊपर टेबल चेयर्स लगा होता है। पहले तो हम गेस्ट को बोलेंगे कि सर आप चाहें तो हम जो चाहेंगे कि आप इसमें आप अपने रूम में ही खाना खाएं, तो आपको हम एक रूम के बाहर खाना छोड़ देंगे, नॉक कर देंगे, आप दरवाजा खोल के सीधा उसको अंदर ले लीजिए। स्टाफ को अंदर ना घुसाना ही आपके लिए ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा। तो ये सिस्टम कर लेना चाहिए। और अगर आप यहाँ भी कर रहे हैं, मतलब अपना जो डाइनिंग रूम है उसके अंदर भी सर्विस कर रहा है, आप देखिएगा, आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, फेस शील्ड वगैरह तो है ही है, और जहां तक हो सके एक ट्रे के ऊपर वो लगा लीजिए और गेस्ट को बोलिए वो खुद उठा के रख ले। गेस्ट के सामने उनका प्लेट, ग्लास ये सब लेकर हैंडल मत करिए, उसको सजा के ले आइए और ट्रे को वहां पे उनके सामने रखिए कि यहाँ से आप ले लीजिए। और जो भी उनको देना है, पानी का बोतल देना है, ट्रे पर ले आइए, वो खुद उठा लेंगे। वो बोतल को अपने हाथ में लेकर जाके ऐसे मत दीजिए। सो एक इस टाइप का पूरा करना है। और कटलरी क्रॉकरी अगर डिस्पोजेबल आपके पास है तो डिस्पोजेबल कटलरी का इस्तेमाल करना है, जितना ज्यादातर हो सके, अगर आप कॉस्ट मैनेज कर पाते हैं तो। और एक रहेगी आपका हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग का आप गेस्ट को सीधा पूछ लीजिए, क्या सर आप 2 दिन रहिएगा, क्या आपको रूम क्लीनिंग चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो हम स्टाफ नहीं भेजेंगे रूम के अंदर, चाहिए तो हम भेजते हैं, तो गेस्ट को भेजिए और क्लीनिंग करा लीजिए उनको पूछ के कि होगा या नहीं होगा। गेस्ट चले जाने के बाद पूरा वो जो लिनेन से शुरू करके पूरा रूम को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा आपको।
डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होता है, बाजार में मिल रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, ये अभी शुरू होने वाला ही है, आप अपना डिसइंफेक्टेंट बना लीजिए। वो नेट पे जाइए, बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सस्ता हो जाता है। अपना डिसइंफेक्टेंट, अपना सैनिटाइजर अगर बना लीजिएगा तो वो बाजार से वो जो ब्रांडेड होता है उससे मतलब आधा आपका कॉस्ट भी नहीं आएगा, आधा कॉस्ट नहीं आएगा, उससे कम हो जाएगा। एक साल थोड़ा ज्यादा बना के रख लीजिए और वहीं से इस्तेमाल करिए, क्योंकि होम स्टे में तो हमारा होटल जैसा उतना बड़ा तो प्रॉफिट नहीं होता है, उतना रूम नहीं है हमारे पास, तो हमको कॉस्ट कटिंग में देखना पड़ेगा कि हमको कैसे कैसे कहाँ हम कॉस्ट कटिंग इसका कर सकते हैं। और जितना ये जो टच पॉइंट्स होता है, डोर नॉब वगैरह जितना भी होता है, टच पॉइंट जिसको बोलते हैं, मतलब जहां पे लोग टच कर रहे हैं, डोर का जो दरवाजा खोलने का जो नॉब होता है, अंदर आके रिसेप्शन में आया, एक चेयर में बैठ गया कोई गेस्ट, तो चेयर को डिसइंफेक्ट करना है। चेयर का जो हैंडल है, टेबल के पास आया, डाइनिंग टेबल में बैठे, चेयर में बैठे, डाइनिंग टेबल पहले डिसइंफेक्ट करना है, फिर वो उठ के जाने के बाद दोबारा फिर डिसइंफेक्ट करना है, वो स्प्रे से करना पड़ेगा। तो डिसइंफेक्शन बार बार करना पड़ेगा। और चीज याद रखिएगा, बिजनेस के लिए अच्छा है, अब जितना सफाई का काम कर रहे हैं ना, गेस्ट के सामने भी करते रहे। जैसे लॉबी में गेस्ट लोग आ रहे हैं तो उसका फ्लोर मॉपिंग वगैरह वो डिसइंफेक्टेंट के साथ सारा सब कुछ। स्टेयरकेस अगर है तो स्टेयरकेस का रेलिंग है, क्योंकि रेलिंग में लोगों का हाथ चला जाता है। ये जितने जितने जहां भी आप अपना प्रॉपर्टी को देखिए, वहां पे जरा पहले से पता करिए कहाँ लोगों का हाथ ज्यादा टच होता है, वो जगह बार बार डिसइंफेक्ट करिए पूरे दिन के अंदर, ये पूरा करना है। तो और जो भी ये जो आपका ग्लव्स आप इस्तेमाल करते हैं, फेस शील्ड या मास्क, इसको अगर फेंकना है तो नॉर्मली जैसे नॉर्मली फेंकते हैं ऐसे फेंकने ही दीजिएगा। उसका बायो हैजर्ड बैग होता है एक, वो बाजार में आ गया है, वो भी कोई पहले बहुत वो एक्सपेंसिव होता था, आजकल उतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो सस्ता ही है, उसको खरीद लीजिए। उसके अंदर सील करके ये सब चीज फेंकने का है। और इसके बावजूद मैं बता रहा हूं, जो कुछ भी मैंने बताया ये सब कुछ, ये हमारा इंडिया टूरिज्म का जो वेबसाइट है उसमें जाइए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने के बाद भी उसमें जितना लिखा हुआ है, हो सकता है तो उससे थोड़ा ज्यादा ही करिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बोला गया है कि ये करिए, ये करना आवश्यक है। वो आवश्यक चीज के ऊपर जाके आप जितना करिएगा उतना अच्छा है। और बिजनेस कैसे शुरू होने वाला है, आगे कहां से फिर लोग आएंगे, ये जो भी हम जो पहले से हम जितना पकड़ पाते हैं उन्हीं का बिजनेस अच्छा बन भी जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, अभी शॉर्ट डिस्टेंस से लोग आएंगे, 2 महीना बाद, करीब 2 महीना बाद कलकत्ता जैसे शहर से लोग आना शुरू कर देंगे ये पूजा के बाद इस समय। और बाई जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर हम पूरा नॉर्मल में वापस जाएंगे, लेकिन नॉर्मल का मतलब न्यू नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, 2019 वाला नॉर्मल, उसके साथ हेल्थ और हाइजीन का ये जो सेफ्टी फैक्टर्स है इसको पूरा नजर में रखते हुए नॉर्मल। तो मैं समझ सकता हूं, अभी भी मैं शुरू में भी मैं बोला था कितना कठिन समय हमारे लिए ये बीता है 5 महीना, अब ये खत्म हो रहा है। अभी हम वो सर पे हाथ रख के बैठ जाने का समय नहीं है, ये समय है प्लान करने का, मार्केटिंग करने का, सबसे कांटेक्ट करने का। आपके लिए तो मैं इतना देखता हूँ, ये जो देवाशीष बाबू है ये तो पहाड़ के लिए जान कुर्बान कर रखे हैं जितना मुझे मालूम है, और आपका जो ये जो संदीपन बाबू है, और भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, ये सब लोग मैं खुद बैठ के बात किया हूँ इन लोगों के साथ, ये सबका आप सबके लिए इनके दिमाग में इतना चिंता है कि इनको कैसे हेल्प किया जाए, क्योंकि ये लोग बचेंगे तो पहाड़ बचेगा। तो आपको भी इन लोगों के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। अपना जो जगह है, अपना जो प्रॉपर्टी है, होम स्टे है, उसमें खूबियां क्या है
और उसमें उसमें सेफ्टी क्या है, सेफ्टी का आप जैसे आपने सोचिए कि जैसे जहां पे गेस्ट अंदर आएंगे वहां पे सैनिटाइज करना है। अब सैनिटाइज कैसे करना है, वो आजकल देखिएगा आप, ये भी बहुत सस्ते का आ गया है। ये आप फुट पैडल मतलब फुट ऑपरेटेड, नीचे पैर से वो हैंडल दबाया, ऊपर ये सैनिटाइजर निकल आया। तो मैंने कोई जगह में टच नहीं किया। तो ये जितना हो सकता है, नहीं तो आप खुद खड़ा होके उनके हाथ में स्प्रे करिए। तो जहां पे आप जो जो कुछ कर रहे हैं, जहां पे आप पोस्टर लगाए, जहां पे आप डिसइंफेक्टेंट कैसे कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ लीजिए, पोस्टर का फोटोग्राफ लीजिए, और सारा आप ये टूर ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर इन लोगों को भेजिए कि भाई मैं घर से ज्यादा सफाई यहाँ पे करके रखा हूँ, आप बताइए, गेस्ट लोगों को भेजिए हमारे पास। ये चीज हमें अभी करना है, बिजनेस प्लानिंग करना है कि अभी प्लेन्स अभी जो तराई है हमारा, वहां से जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, ये सब जो बोला मैं, ये सब जगह से सिलीगुड़ी, और 1-2 महीने के अंदर फिर कोलकाता से भी चालू होने वाला है। और बहुत बढ़िया इन लोगों का वो दीजिए, वेलकम करिए, जो नॉर्मली आप करते ही हैं वैसे ही पहाड़ में हम आना पसंद करते हैं। पहाड़ियों का जो अपना जो एक जो बिहेवियर का एक स्टाइल है वो बड़ा प्यारा है। ये सबको ही बोलते हैं यार, क्या उनका एक स्माइल में एक जेन्युइन स्माइल होता है। सो वो तो आप रखिए ही रखिए, साथ में ये सारा जो हेल्थ का है ये करिए। ये काला दिन जा रहा है, ऑलरेडी ये जा रहा है, और 1 महीना बाद मिलेंगे तो हम बोलेंगे जा चुका है। तो इसी के साथ मैं अपना जो बोलना था वो खत्म करता हूं। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं सारा प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के दौरान मैं जितना जवाब दे सकता हूं मैं कोशिश करूंगा। Thank you, Dr. Chatterjee. Yeah, I'm extremely sorry because due to some technical error, I could not join you in proper time. अन्त हाम्रो दाजु, हाम्रो दिदी बहिनीहरू सबैले तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यो डक्टर च्याटर्जीको कुरा। वी हैड अलरेडी लिसन। तपाईँको जुन चाहिँ पनि क्वेसन छ त्यो क्वेसन तपाईँले च्याट बक्समा गर्नु सक्छ। अन्त नभएर तपाईँले एउटा अनम्युट गरेर तपाईँको क्वेसन तपाईँले राख्नु सक्छ। अरू यो सँगसँगमा पनि तपाईँले यो भन्नु चाहिन्छ कि अब यो लास्ट कपल अफ इयर्सको भित्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि त्यो मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म खास चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, त्यसको सँगसँगमा पनि हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ संस्था अर्गनाइजेसन एथोवाको सँगमा मिलेर अब यो खास चाहिँ ग्रामीण अर्थनीति जुन चाहिँ छ कम्युनिटी टुरिज्मको डेभलप गराउनुको लागि हामीले धेरै प्रकार एवं प्रकाश यो चाहिँ गर्दैछौँ। अब यो भित्र एउटा फर्म तपाईँको उता आउँछ, त्यो चाहिँ फर्म अलिकति तपाईँले फिलअप गरेर तपाईँको रेस्पेक्टिभ मेल आइडीको भित्र त्यो पठाइदिनुहोस्। यो सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट इस्यु गर्छ। Now I would I'd like to say something here. Sir. ये सर्टिफिकेट को ना इन लोगों को फ्रेम करके एकदम जहाँ पे दिखता है वहाँ लगा देना चाहिए। Absolutely. Thank you, sir. जो गेस्ट आएंगे उनको वो ये देखेंगे कि इसको इन्होंने पूरा, इनके पास पूरी जानकारी है। Sir. तो वो भी एक कॉन्फिडेंस का पॉइंट होगा। That's तपाईँको यो those who had already been done with this IIBNB homestays, all we know that we have to keep some place and this thing on our the visible area. अन्त सरले पनि सर डाक्टर अंशुमन च्याटर्जीले पनि त्यसले भन्दैछ कि तपाईँको जुन चाहिँ सर्टिफिकेट आउँदैछ आजको प्रोग्रामको त्यो सर्टिफिकेट पनि तपाईँले अलिक ल्यामिनेट गरेर त्यो चाहिँ मेन साइडमा राखिदिनुहोस्। किन चाहिँ जुन चाहिँ टुरिस्ट तपाईँको उता आउँछ त्यो टुरिस्टको लागि पनि कन्फिडेन्स आउँछ, हाम्रो आफ्नो भित्र पनि कन्फिडेन्स आउँछ। सो यो एउटा एक चिज गरेर तपाईँको क्वेसन तपाईँको एन्सर बक्स त्यसमा राखिदिनुहोस्। Now, may I request Mr. Sandeepan, our General Secretary, Eastern Himalayan Travel and Tour Operator Association. So kindly, if any question has come, if you would even go with this the questions one by one. If any language has been issued, I would ask with Dr. Chatterjee's permission that I can translate it in with my own language, Nepali. Yeah, thank you, Debashish. We've got a very few questions actually. There's one question from Mr. Prabhakar Thapa. He's actually suggesting that cost is a big factor for homestay owners. Is there any steps how to reduce the cost? Dr. Chatterjee. देखिए, एक बिजनेस में प्रॉफिट दो चीज से होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करके और सेल्स को बढ़ा के।
इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब सेल्स बढ़ाना इसका तो हमारे हाथ में है नहीं। अब मैं पहले भी कई सारे वेबिनार में मुझे ये चीज पूछा गया है कि हम प्रॉफिट कैसे करेंगे, इतना हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है। कॉस्ट तो थोड़ा बढ़ ही रहा है क्योंकि ये सैनिटाइजर, डिसइंफेक्शन, ये सब कुछ करना, फेस शील्ड, मास्क, जितना भी कम हो कॉस्ट तो कुछ तो बढ़ रहा है। तो अभी हमको देखना है बिजनेस को फिर प्रॉफिट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले एक चीज मैं बेच रहा था 100 रुपया में और उसका मेरा कॉस्ट आता था 70 रुपया। अब मेरा कॉस्ट बढ़ गया है, अब मेरा कॉस्ट बन गया है 90 रुपया। तो 10 रुपया प्रॉफिट लेकर मेरे पेट कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये 90 रुपया कॉस्ट में हमारा क्या क्या आ रहा था, ये जो 70 रुपया का कॉस्ट था। अभी गेस्ट से भी, टूरिस्ट जो आते हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। पहले हो सकता है हम दूर जाके कुछ खाना लेके आते थे, ये लेके आते थे, सॉरी, वो लेके आते थे, तो वो एक तो नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि कॉस्ट में ज्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वैसे ही होम स्टे में कॉस्ट में क्या कोई लक्जरी कॉस्ट तो है नहीं। जितना है जो बेयर मिनिमम जो दिया जाता है वही हम देते हैं। बड़ा बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, वहां पे कॉस्ट कंट्रोल किया जा। अब ज्यादातर होम स्टे में हम तो नौकर चाकर भी रखते नहीं है, खुद भी काम कर लेते हैं सारा। एक जन हो सकता है आके खाना पका के देता है या झाड़ू मार के जाता है। वो भी मैं ऐसा होम स्टे जानता हूँ जहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलकर ये सारा कुछ कर लेते हैं ताकि कॉस्ट सेविंग के लिए। तो ऑलरेडी कॉस्ट सेविंग में तो हम लगे ही हुए हैं और कहाँ पे हम कॉस्ट का घाटा करेंगे? कॉस्ट ज्यादा हम कम नहीं कर पाएंगे। समझ लेते हैं कि चलिए हमारा कॉस्ट 70 से 90 हो गया। अब 100 में से हमारे पास बचा 10 रुपया, पहले बचता था 30 रुपया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी टूर ऑपरेटर से बात करिए, ट्रैवल एजेंट से बात करिए, उनको बोलिए बॉस पहले हम टूरिस्ट को 100 रुपया इसके लिए चार्ज करते थे, अब हमें 110 रुपया चार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए 110 रुपया चार्ज करने से क्या हो रहा है, मेरा पहले प्रॉफिट होता था 30 रुपया 100 रुपया में से, अभी मेरा कॉस्ट आ गया 90 रुपया, मेरा 110 रुपया का मेरा प्राइस है, तो मेरे पास प्रॉफिट आने लगा है 20 रुपया। तो मेरा प्रॉफिट मेरा घट गया 10 रुपया और गेस्ट का कितना बढ़ गया पहले से? 10 रुपया। तो अभी ये जो 20 रुपया का जो कॉस्ट जो एडिशनल हो गया है, 70 से 90 हो गया, उसका 10 गेस्ट ने लिया, 10 मैंने लिया। मैं भी प्रॉफिट कम किया, गेस्ट ने भी थोड़ा ज्यादा दिया। ये एक तरीका होता है सबसे बढ़िया गेस्ट, क्योंकि अभी सारे गेस्ट समझेंगे। मैं खुद समझ रहा हूं कि अगर मुझे अभी कहीं घूमने के लिए जाना पड़ेगा तो 2019 में मैं जितना पैसा उसके लिए देता था उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अभी प्लेन में उसका खर्चा मुझे ज्यादा देना पड़ेगा फ्लाइट का, क्योंकि एक सीट बाद एक सीट का दिया जा रहा है। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट का दूरी रखना है, ये करना है, तो इससे कॉस्ट बढ़ रहा है। तो मुझे मालूम है ये जब मैं बाहर जाऊंगा ये कॉस्ट हमको देना पड़ेगा। सारे टूरिस्ट को ये मालूम है, कोई आके नहीं बोलेगा आप कॉस्ट कम करिए, ये नहीं होगा। तो इसके हम ऐसा भी नहीं कि हम 20 रुपया हमारा ज्यादा कॉस्ट आ रहा है चढ़ा दो उसको 120 बना दो, फिर प्रॉब्लम है। हमको एक बैलेंस करना पड़ेगा और ये भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं, फिर हम 100 रुपया ही चार्ज कर पाएंगे। जनवरी फरवरी के पहले फिर हम वो नॉर्मल सिचुएशन में वापस जाएंगे जहां हम 100 रुपया चार्ज करके 70 रुपया कॉस्ट रख के 30 रुपया प्रॉफिट करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं था, अभी शुरू हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा लेकिन हम बिजनेस 100% करेंगे, करने वाले हैं, शुरू होने वाला है। Respected participants, hope you would even understand what Dr. Anshuman Chatterjee had said. Now I do request that if you would even look at this chat box, तपाईँले उता एउटा लिंक पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको एसओपी छ जुन चाहिँ सिस्टम स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर। You can download that, or else you can directly communicate with this organization ETHOA and MOT, who might be helpful. So I'm just adding with Dr. Anshuman Chatterjee is regarding this how many nights business now in generating in Darjeeling Himalayas, this area. Now, this all the tour operator association and organizations like ETHOA is one of the biggest body in this area, and you do have more than 350 members. And globally tied up with a few of the countries, mainly the SAARC countries. So if the homestay owners would have been tied up with this organization and obviously through MOT, Incredible India Bed and Breakfast Scheme,
So I think they would get a direct contract apart from their own niche area, own marketing area. So I think it would be really helpful for them. Now, I have one single question to Dr. Chatterjee. It's regarding the experience that I had worked for the last, touching 2 decades. Sir, I had seen with this, the tourism, now this concept is coming, we are talking about is the agro-based tourism. So do you think that really it would help for the, especially for this community people and the rural people, those who are running homestays, sir? जी, एक चीज हम पहाड़ में, ये दुख की बात है, हमने नोटिस किए है कि पहाड़ में तो देखिए होम स्टे वगैरह तो अभी दिख रहा है। टूरिज्म के पहले क्या पहाड़ में लोग खाते नहीं थे? खाते तो थे, उनका भी फसल होता था और जगह भी है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में फसल कुछ नहीं होता है, फल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ है, पहाड़ में जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया पिछले समझ लीजिए 10 से 20 साल में, कि इतना टूरिज्म के ऊपर लोग डिपेंडेंट हो गए कि अपना जितना फलन होता था हर चीज में, सिर्फ फसल में नहीं, इवन फ्लोरिकल्चर जो फूल का जो खेती होता है वो भी इतना कम हो गया है, ऑर्चर्ड कम हो गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा अरे मेरे पास एक घर है, 3 कमरा है, उसको थोड़ा सजा के बस इसको बेचते हैं, इतना कौन हमारा खेती का वो करेगा और ये करेगा। देखिए अब मेरा कहना है कि ये करिए जरूर, ये तो टूरिज्म का जगह है, तो आप भी तो टूरिज्म का हिस्सा है, क्यों नहीं उसका एक पोर्शन आपके पास भी आए। लेकिन साथ में ये जो एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब भूल जाने का मतलब होता है कभी भी एक चीज में, वो अंग्रेजी में बोलता है पुटिंग ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, कि आपके पास जितना अंडा है एक ही आपने एक डब्बा में रख दिया, वो डब्बा अगर गिरा तो सारे अंडे खराब हो गए। तो अलग अलग डब्बे में रखिए ताकि एक डब्बा गिरा भी तो दूसरा डब्बे में आपका सारे अंडे ठीक है। तो इसी तरह पहाड़ में लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए। आप देवाशीष बाबू, संदीपन बाबू, इन लोगों से बात करिए कि तो फिर करना क्या चाहिए। मुझे जो लगता है वो करना जो चाहिए, अपना जो पुराना जो तरीका था उसको पूरा गवा मत दीजिए, उसको वो ना खो ना जाए पूरा के पूरा, उसको साथ में रखिए। मैं जानता हूँ एक जन को ताकदा में, वो अपना होम स्टे करता है, लेकिन साथ में इतना अच्छा फ्लोरिकल्चर वो जिंदा रखा है। मुझे सारा दिखाया उसने, वो जितना गेस्ट होता है उनका जो नर्सरी है उसका टूर उसका आइटिनरी में डाल देता है, नर्सरी में ले जाके सारा दिखाता है। तो उसका एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी है। इस समय में जब ये पूरा पैंडेमिक हुआ, मैं उससे बात हो रहा था उसका टूरिस्ट तो कोई नहीं आया उसका होम स्टे में, लेकिन उसका फ्लोरिकल्चर से उसका उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। फ्लोरिकल्चर था, फूल सारा बिका उसका, उससे पैसा आया, तो बाकी कई लोगों से वो ठीक ठाक रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना जो वे ऑफ लाइफ है उसको खो नहीं देना, कि सिर्फ होम स्टे है हमारा, टूरिस्ट आता रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा। कौन कह सकता है कभी कुछ नहीं होगा? नहीं होगा। आज कोविड-19 हुआ है, कल कोविड-20 हो सकता है, परसों कोविड-21 हो सकता है। तो हम क्यों ऐसा करेंगे कि बस एक ही चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट बन जाएं? आप लोग सलाह लीजिए। मैं जैसे बोला, देवाशीष बाबू है, संदीपन बाबू है, और भी लोग हैं जो पहाड़ का भला चाहता है, पहाड़ से प्यार है जिनका, पॉलिटिक्स नहीं है, प्यार है जिनका। तो उन लोगों से बात करिए और उनका जो एडवाइस है, उनका जो सलाह है वो सारा लीजिए। मेरा सलाह ये है कि अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो पहाड़ का जो अपना जो लाइफस्टाइल है, उसको सिर्फ टूरिज्म के लिए गवा मत। Thank you, Dr. Chatterjee. Sandipan, do you have another question? Because this time is also coming up. Yeah, not a question, but I think we are close to finishing the program. So just before we close, just continuing on what Devashish had just said, ITHWA as an organization, we have certain plans for the immediate future, especially for homestay operators, because
we believe in the new normal. Homestay is going to be the future of tourism for the next 1 year. And I don't think I've got any any doubts in my mind about the same. So we are just waiting for the situation to get a little bit more normal, so that the restrictions are not in place. Preferably in the second half of September, we are planning some confidence building measures. We're also planning some awareness campaigns in the hills. So we'll keep all the homestay operators in the loop. Debashish is going to take the initiative of taking the homestay operators into confidence. So I think all of us need to work together to get this situation to sort of, as Dr. Chatterjee enlightened us, that we need to get somewhere where we start moving once more as an industry. So thank you all for attending, and we are very, very happy and privileged to have all of you. And as always, Dr. Chatterjee, absolute privilege to have you. We love getting back to you. We come every week to you, and with a smiling face, you enlighten us, and you give us all the information. So thank you so much once more. I always look forward to session next Monday on transporters. So we'll look forward to that session. And I believe you're traveling back to Kolkata. So, sir, have a very safe trip. The new normal, we are all very careful, but very safe trip. And over to Debashish for the closing remarks. I am very, very happy to have all of you here. And thank you so much for being a part of this program. Thank you. Thank you, Sandeepan. Thank you, Dr. Chatterjee. It's a very informative and a nice session. And thank you to the Ministry of Tourism's officials, especially Mr. Sagnik Chaudhary, the Regional Director, East, Kolkata, and Mr. Nandi, Mr. Shayak Nandi, the Tourist Information Officer, is a very keen person who is keeping a regular liaison with us, with the organization, and as well as the members of the homestay community. Before I would ask for your permission to leave this place, now may I request Mr. Shayak Nandi, not over this now, because of the Mr. Nandi and the Ministry of Tourism officials, if we can closely look on this Incredible India Bed and Breakfast scheme, especially for this is Darjeeling Himalayas. Obviously, our General Secretary, Mr. Sandeepan Ghosh, is here, and ETHWA is definitely will participate in this sensitizations program. So what I personally feel after that is a post-COVID situation, and definitely people will come, as Dr. Chatterjee said, and people are looking for the more the safety place, and obviously we'll go for this SOP. अन्तमा धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहिन्छ हाम्रो यो चाहिँ दार्जिलिङ हिमालयसको खास चाहिँ दार्जिलिङ कसियाङ कालिम्पोङदेखि यति टाढो टाढो भएर तपाईले जुन चाहिँ यति दुःख लिएर पनि यो जग्गामा तपाईले पार्टिसिपेट गरे हामीले थाहा छ हामी टाउनमा बसेको छ मेरो नेटवर्कको प्रब्लम आउँदैछ तपाईले यति टाढो बसेर तपाईको नेटवर्कको कस्तो प्रब्लम हुँदैछ त्यो पनि हामीले बुझे तर आइदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद and obviously we'll get back to you. ETHWA is with you, Ministry of Tourism, Government of India is with you, and our respected Dr. Angshuman Chatterjee will be always with us in future. Thank you very much.